everyone, this is another video in the crash course of modern history. तो ये जो वीडियो है ये सब्सिडरी अलायंस के बारे में है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट अन अकेडमी हियर ब्रिंग्स यू द प्राइस हाइक अलर्ट. ओके, तो जो भी सब्सक्रिप्शन आपको बाद में ज़्यादा कॉस्ट में ज़्यादा प्राइस में मिलेगा, यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन विद अ डिस्काउंट ऑफ 10% एक्स्ट्रा ऑफ by using the code SIMPLEYT. You just have to type the code SIMPLEYT and you can get it with a discount of 10%. So see, this is another program by Unacademy Aspire program. So this will allow you to take the test on 10th and 25th of every month, and if your name is placed in the top 50, you will be gifted with exciting prizes and scholarships. So do apply for this test, and as you all know that it will be conducted on 25th of every month as well as 10th of every month. So for the next test that is going to be happen on 25th, do enroll for it. See, Unacademy is one such educational program that will provide you with all the kinds of courses for your convenience. Like if you are comfortable with only English, you can go for purely English batches. Okay, if you want the medium to be in English as well as आप हिंदी में भी सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए बाइलिंगुअल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड अगर आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हिंदी की क्लासेस भी लगाई जाएंगी. So here is a gift by Unacademy, that is you can get unlimited benefits with just one subscription. All you have to get one subscription and you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by top educators of India on just one platform. Also there would be regular doubt clearing sessions and answer writing sessions. Study material would be provided in PDF format as well as videos would be available. Also, the live test series would help you to analyze your preparation. Along with that, you will get a mentor, a personal guide who would exactly tell you, who would help you to know your mistakes and rectify them. So, you are getting all these benefits with a subscription on Unacademy. When you are going for the subscription, do not forget to apply the code SIMPLEYT, and with that you are getting 10% extra off. So Unacademy brings Champions Conclave. This is one such session that would allow you to ask your queries, and also the toppers of UPSC Civil Service Aspirants 2019. All those who have topped the list, they would be here to solve your doubts, and also you would get guidance, and you would come to know about their strategies and what all the points you would be missing without actually attending this session. ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई की बातें बताएंगे. दे विल ऑल्सो टेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द प्लान, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजीज. ठीक है, विदाउट अ प्रॉपर प्लान, विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, you cannot start it, you cannot reach at that point. So this conclave is all about that. See, this is like Unacademy brings you the daily current affairs test series. इसमें ऐसा है कि 7:30 पे डेली शाम को 20 क्वेश्चन की एक क्विज रिलीज़ की जाएगी जो कि 20 मिनट में आपको सॉल्व करके देनी है, एंड इट वुड बी ऑफ 40 मार्क्स. इस टेस्ट के एंड में आपको टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट दी जाएगी जिसके बेसिस पर आप जान सकते हैं हाउ मच you are updated. Okay. So when you're going for the subscription, do not forget to join our channels. These are the YouTube, Telegram and Facebook links. So see, method adapted by British to conquest India. Like I was telling you that this video is all about subsidiary alliance. ठीक है, ये एक अलग से टॉपिक मैंने इसलिए पढ़ाने के लिए सोचा because see, there were 3 methods which British East India Company mainly they used these methods to expand its rule all over the country. तो उसमें से एक है सब्सिडरी अलायंस. ठीक है, हमने बहुत सारे जगह पे पढ़ा है कि सब्सिडरी अलायंस लाइक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था द नवाब ऑफ अवध, ही ऑल हिज टेरिटरीज वर टेकन अवे बाय लॉर्ड वेलेस्ली. Okay, when he was unable to pay for the subsidiary alliance, all the like almost half of the territories were taken away by the East India Company as penalty. ठीक है, तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ये क्या है वो
I will tell you. See, this is subsidiary alliance, a treaty between East India Company and Indian princely states. Okay, this is one such definition which you can keep in your mind, जिससे कि आपको जब भी कोई पूछे that what actually is subsidiary alliance, you know that it is a treaty between East India Company and Indian princely states, okay, by virtue of which Indian kingdoms lost their sovereignty to the company. ठीक है, तो ये ऐसा है, ये दिस वॉज वन सच ट्रीटी विच अलाउड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू गेन मोर एंड मोर कंट्रोल ओवर द over the things, over the area, the regions which were actually under the control of the king, but they were being run by the company itself. Okay, the king was under the company by using the subsidiary alliance. This was one such treaty. Now, non-intervention policy also, okay, this system, subsidiary alliance system, was also called non-intervention policy. Nawab of Awadh, I told you that he was the first ruler to enter into this alliance. Okay, I told you that almost half of the territories were taken away from Nawab of Awadh as penalty when he was unable to pay for this subsidiary alliance. ओके, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर देयर वर सो मैनी, बक्सर के बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो बदली इंडिया में, काफ़ी सारी ऐसी ट्रीटीज़ थी जो आई इंडिया में. बक्सर के बाद काफ़ी सारे बैटल हुए, जिसकी वजह से जो ट्रीटीज़ थी दे वर मेनली टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडियन ओनली. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारी ट्रीटीज साइन करवाई, जिसमें से सब्सिडरी अलायंस वाज वन सच ट्रीटी, जिसमें एंटर करने वाले जो फर्स्ट किंग थे, फर्स्ट रूलर थे, एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर वाज नवाब ऑफ अवध. ओके, उस टाइम पे कौन थे? शुजा उद्दौला. ठीक है, शुजा उद्दौला वाज द फर्स्ट रूलर हु वाज मेड टू साइन दिस ट्रीटी. Okay, however, the Nizam of Hyderabad was the first to accept a well-framed subsidiary alliance in 1798. Okay, so see, like subsidiary alliance system, this what this basically means, this alliance, this treaty was basically to bring Indian states within the orbit of British power. ठीक है, ऐसा है कि पहले जो लगता था ईस्ट इंडिया कंपनी को दिस एंड दिस रीजन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, आउट ऑफ माई पावर, तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस लेकर आए, जिससे कि वो सारे जितने भी रीजन्स थे वो सबको अपने पावर के अंडर लेकर आए. ओके, इन द ऑर्बिट ऑफ ब्रिटिश पावर. ठीक है, तो शुजा उद्दौला, ही वॉज द फर्स्ट वन. And then this treaty was between East India Company and Indian princely states. And also this was framed by Wellesley. Okay, he was the first governor general who framed this subsidiary alliance system, and the term was used by French governor general. Actually, the term was introduced, it was only introduced by Dupleix. Okay, somebody called by the name of Dupleix, he introduced this term, but later on Wellesley framed this system, this alliance, and he made the kings, the rulers, to sign this treaty. So here we are studying the features of subsidiary alliance system. An Indian ruler entering into subsidiary alliance with the British had to dissolve his own armed forces and accept British forces in his territory. तो देखिए, मैंने आपको इसमें बताया कि ये अपने कंट्रोल में लेने के लिए यूज़ किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. तो इसमें क्या होता था कि जो भी किंग है, ठीक है, वो जो किंग के पास जितनी भी आर्मी होती थी, उसके जो फोर्ट है, उसका जो रीजन है, जो किंगडम है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो आर्मी जो किंग पहले पजेस करता था, तो कंपनी ने बोला आफ्टर, मतलब ये ट्रीटी में क्या लिखा हुआ था कि आपकी जो आर्मी है आप उसको डिज़ोल्व करिए, उसको डिज़ोल्व करने के बाद हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे और जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और जो प्रोटेक्शन हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट, लाइक द आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी प्रोटेक्टिंग द किंग. ठीक है, तो वो जो किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्मी है, उसमें जो लोग होंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही लाए जाएंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली मेंटेन इसको ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बट the payment has to be made by the king to the company. ठीक है, तो अब ऐसा है कि जो आर्मी थी किंग की, उसको डिज़ोल्व करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि
आप उसको डिज़ोल्व कीजिए, आप हमें पैसे दीजिए, हम आपकी एक आर्मी मेंटेन करेंगे जो कि लाइक दैट वुड बी द कॉमन आर्मी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द किंग्स। तो वो कॉमन आर्मी जो होगी वो आपको प्रोटेक्ट करेगी और आप उस प्रोटेक्शन के हमें लाइक पैसे दीजिए एज मेंटेनेंस ऑफ दैट आर्मी। ठीक है, तो ये हुआ था। इस ही ऑल्सो हैड टू पे फॉर द ब्रिटिश आर्मीज मेंटेनेंस इफ़ ही। अब देखिए, अब ये जो पेमेंट की बात है, अगर वो फेल हो जाते हैं, अगर किंग मतलब हाउ दिस ट्रीटी वॉज एक्चुअली लीडिंग टू द लॉस ऑफ द टेरिटरीज। ठीक है, अब हमें ये देखना है। तो ऐसा है कि अगर ये पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं किंग या रूलर्स, तो क्या होता है कि जो भी उस रीजन, उस किंगडम के कुछ टेरिटरीज थे जिनको एज पेनल्टी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ले लेती थी कि ठीक है, आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप हमें ये रीजन्स दे दीजिए, हम ये रीजन से रेवेन्यू कलेक्ट करके उतना ही पैसा मतलब कमा लेंगे जितना कि हम आपसे लेने वाले थे, जितना कि वो किंग से लेने वाले थे। तो दिस वॉज द एक्चुअल थिंग। In return, the British would protect the Indian state against any foreign attack or internal revolt. अब देखिए, जो आर्मी थी वो अब कैसे प्रोटेक्ट करेगी। देखिए, कोई भी फॉरेन आर्मी आ रही है, ठीक है, अगर आप ब्रिटिश फ्रेंडली स्टेट हैं तो कोई भी फॉरेन आर्मी अटैक करने आ रही है आपके स्टेट को, तो अब जो उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और अगर इंटरनल रिवोल्ट भी हो रहा है किंग के अगेंस्ट, ठीक है, तो स्टेट के अगेंस्ट अगर किसी बात पे रिवोल्ट हो रहा है तो उससे भी जो फाइट करेगी दैट वुड बी द आर्मी दैट वाज मेंटेन्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इटसेल्फ। दिस वाज ऑल द थिंग्स रिटन इन द सब्सिडियरी अलायंस। दिस वाज द ट्रीटी। The Indian state could not enter into any alliance with any other foreign powers. See, now ये ईस्ट इंडिया कंपनी कौन चला रहे थे? ब्रिटिश चला रहे थे। अब ऐसा था कि अगर ब्रिटिश की जगह वहाँ पे और भी यूरोपियन पावर्स गए थे जैसे कि फ्रेंच, डच, तो अब उन्होंने ये बोला वंस यू एंटर दिस ट्रीटी यू वुड नॉट बी अलाउड टू हैव रिलेशंस विद अदर यूरोपियन पावर्स लाइक फ्रेंच एंड डच। ठीक है, उसके बाद आप फ्रेंच और डच से रिलेशन नहीं रख पाएंगे अगर आप इस ट्रीटी को एक बार साइन करते हैं। ही कुड ऑल्सो नॉट एम्प्लॉय एनी अदर फॉरेन नेशनल्स अदर दैन इंग्लिशमैन इन हिज सर्विस। ठीक है, अब उस टाइम पे जो प्रोमिनेंट सर्विसेज होती थी, जो पोजीशंस होती थी, जो पावरफुल होती थी, ओके, विच वर मेनली यूज टू हैंडल द एंटायर स्टेट। ठीक है, तो वहाँ पे जो पोजीशंस थी उन पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मैन ही सर्विस करेंगे। दिस वॉज रिटन इन द दिस वॉज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, आप उस पर किसी और भी जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई फ्रेंच दोस्त है तो आप फ्रेंच को वहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, किसी फ्रेंच पर्सनल को आप नहीं रख सकते हैं लाइक ऑन दैट पोजीशन। The Indian state could also not enter into political connection with another Indian state without see. This was one major disadvantage. इसमें ये था कि जो ब्रिटिश अप्रूवल आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप किसी और इंडियन स्टेट के साथ अपने रिश्ते बेहतर करते हैं तो आपको उसके लिए ब्रिटिश अप्रूवल लेना पड़ेगा। So this was one like major disadvantage. The Indian ruler thus lost all the powers in respect of foreign affairs and the military. Okay, तो अब देखिए ये जो ट्रीटी थी बेसिकली जब एक बार इसको किसी भी रूलर ने साइन किया तो अब ऐसा था कि वो रूलर के पास कोई भी पावर नहीं बचती थी टू यू नो दिस कंट्रोल द फॉरेन अफेयर्स एंड द मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री उसके हाथ से जा चुकी थी। अब मिलिट्री में ऐसा था कि मिलिट्री अगर चाहे तो प्रोटेक्ट करेगी, नहीं चाहे तो नहीं प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, वो कभी भी धोखा दे सकती थी। दे कुड बिट्रे एट एनी मोमेंट। फॉरेन अफेयर्स में कोई कंट्रोल नहीं रहा कि आपको दूसरे स्टेट के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, दूसरे यूरोपियन पावर्स के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, ये सब अब ब्रिटिश ही द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड डिसाइड। इफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स। फर्स्ट वन वॉज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ठीक है, अब देखिए जो आर्मी थी पहले जो किंग मेंटेन करते थे तो उसमें जो लोकल्स होते थे, ठीक है, तो उसमें लोकल सोल्जर्स रखे जाते थे। अब जो आर्मी मेंटेन हो रही है अब उसमें वही लोग रहेंगे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रूव करेगी। ठीक है, इसमें किंग के जो एरिया के लोग हैं उनको दे हैड टू फेस दिस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट वन दिस इज सो नेचुरल। देन सेकेंड वन इज ब्रिटिश कंट्रोल एक्सपैंडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने देखा कि ब्रिटिश कैसे अपना कंट्रोल एक्सपैंड करते चले गए। दिस ट्रीटी, दिस पॉलिसी गेव देम लाइक ह्यूज पावर। ठीक है, अब देखिए आर्मी उनके कंट्रोल में, दो मेजर चीज़ें उनके कंट्रोल में, पहला आर्मी, दूसरा जो फॉरेन लाइक ऑल द स्टेट्स। ठीक है, ऑल द स्टेट्स के साथ आपके कैसे रिलेशंस होंगे वो भी सिर्फ कंपनी के पावर में चला गया।
ठीक है. कंपनी वुड कंट्रोल ऑल द पॉलिटिकल अफेयर्स, ऑल द फॉरेन अफेयर्स एंड द आर्मी ऑल्सो. लॉर्ड क्लाइव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस इन अवध and Treaty of Allahabad was signed where British promised the Awadh treaty from promised the Awadh territory from enemies like Marathas. ठीक है, उस टाइम पे हमने देखा मराठास राइज कर रहे थे. जब मराठास राइज कर रहे थे तो जो मुगल रूलर थे उनको काफ़ी ज़्यादा दे वर अफ्रेड, they were actually scared of the expansion that was going on in the Maratha kingdom. ठीक है, तो उनके अनेक्सेशन से उनको डर लग रहा था, तो दे टुक हेल्प ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इसी में जब इसी पूरे प्रोसेस में उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करवाया. ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करवाने के बाद उन्होंने क्या किया था, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करवाया तो वो नॉर्दर्न स्टेट्स में भी एंटर कर चुके थे इस तरीके से. Now, order in which the Indian states entered into subsidiary alliance. See, first one, Hyderabad. Okay, 1798. देखिए, मैंने आपको बताया था जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू एंटर दिस सब्सिडरी अलायंस. ओके, वेल सेटअप सब्सिडरी अलायंस. ठीक है, ये जो ऐसा ये ऑफिशियली फॉर्मली जो सब्सिडरी अलायंस में एंटर करने वाली फर्स्ट जो स्टेट था वो हैदराबाद था 1798. देन मैसूर 1799 after Tipu Sultan was defeated in fourth Anglo-Mysore War. See, this story of Anglo-Mysore War is very interesting. Okay, हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, जो मैसूर वॉर्स हुए थे. these were the wars which actually gave control of southern states to the British East India Company. Okay, so we will study about them, that how the East India Company annexed the South Indian states as well. Then Tanjore, then Awadh, Peshwa Marathas, Sindhya Marathas, गायकवाड़ मराठास 1803. देख रहे हैं आप 1798 से लेकर 1803 तक. दिस वॉज अ सीरीज ऑफ साइनिंग द सब्सिडरी अलायंसेस with East India Company. Okay, so there were many disadvantages. So if we study basically the effects of this subsidiary alliances, and only if the disadvantages were there to the Indian people, as I told you. Okay, तो पहला जो है the subsidiary alliance had disaster effects for Indian rulers. Yes, first one, the Indian rulers of subsidiary states lost their independence. They became puppets in the hands of the English, as I told you. The payment of huge subsidies money led to heavy drain, decrease on their resources. See, जब आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर मैनेजिंग द फॉरेन अफेयर्स, फॉर मैनेजिंग द आर्मी, तो वो जो पेमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी. तो वो जो पेमेंट करते करते आप खुद के जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट हो गया. कैसे? अगर मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं कर पाया, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू वांट टू पे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, यू नीड टू हैव मोर रेवेन्यूज़. अब वो रेवेन्यूज़ आपको लोकल से मिलेंगे. अब जब लोकल से आप ज़्यादा डिमांड करेंगे एंड सी, तो इसमें एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका. ठीक है, तो अब जब आप उनसे और मान लीजिए अगर आप नहीं पे कर पाते हैं, अगर आपका फिर भी कॉम्पेंसेशन नहीं हो पाता है, अगर उतना रेवेन्यू नहीं आप कलेक्ट कर पाते हैं, तो इसका जो नॉन पेमेंट के जो पेनल्टी होती थी वो आपको कैसे पे करना पड़ता था? एज टेरिटरीज. ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टेरिटरीज ले लेती थी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दे वुड हैव द कंट्रोल. ओके, द किंग वुड नॉट हैव एनीथिंग टू से. The king would not have any intervention. So all the things were mainly dependent on East India Company, all the things that were happening in that particular area which were under the control of British East India Company. ठीक है, तो वहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगे. काफ़ी the plight of the farmers, especially the farmers, it was unbearable. ठीक है, तो ये ऐसे हो गया कि एक्सप्लॉयटेशन अब स्टार्ट हो गया. कैसे हो गया? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू स्टार्ट हो गया. एंड दिस वाज वन फॉर्मल पॉलिसी. ठीक है, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आप इससे डिनाई करते हैं. यू हैव साइंड द पॉलिसी, यू हैव साइंड द ट्रीटी, यू हैव टू अबाइड बाय इट. द एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स्ड. द इंग्लिश यूज्ड दिस एज एन एक्सक्यूज टू अनेक्स द किंगडम ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट.
The rulers lost interest in the welfare of the people. See, I told you, the rulers lost interest in the welfare of the people. मैंने आपको बोला था कि तब वो ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड करेंगे. ठीक है. All they wanted was to show their power, was to show their how much area is under their control. ठीक है. वो एक पर्टिकुलर किंगडम के राजा हैं, वो ये दिखाना चाहते थे. और सो दैट दे डू नॉट लूज देयर टेरिटरीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. ऑल्सो जब वो टेरिटरीज अपनी लाइक एज पेनल्टी देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, देन ऑल्सो द पीपल वर एक्सप्लॉइटेड. सो दीज वर द सम डिजास्टरस इफेक्ट्स. Okay, so here is a general studies question. Which among the following statements are correct regarding subsidiary alliance? As I have told you the entire subsidiary alliance. So here we'll be attempting one question. It was introduced by Lord Wellesley. Okay, right? That was introduced by Lord Wellesley. But the term was actually, the system was this introduced by Lord Wellesley. He was the first Governor General. But actually, if they said that the term, if they particularly talk about the term, then it was by duplex. Hyderabad and the state of Mysore accepted subsidiary alliance offered by the Governor General. Yes, we have studied that list, that Hyderabad was the first one, then Mysore after the death of Tipu Sultan. They accepted subsidiary alliance offered by Governor General. Yes, by signing subsidiary alliance, an Indian ruler lost the right of maintaining diplomatic relations with other states. Yes. Okay, so this was all about subsidiary alliance, and I hope you have learned that what actually the system was, and I really hope that this would help you in writing the answers. I hope you like the video. Thank you.